ٹرمپ کا ایران کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان، کارروائیاں مزید سخت کرنے کی دھمکی۔ امریکی عوام سے خطاب میں کہا، ڈیل نہ ہوئی تو اگلے 2 سے 3 ہفتے میں شدید حملے کریں گے۔ ایران کو جوہری ہتھیار نہیں بنانے دیں گے۔ ایران کی ایٹم بم بنانے کی صلاحیت ختم کر دی۔ اہداف کے حصول تک آپریشن ایپک فیوری جاری رہے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا، امریکہ کو وینزویلا کے بعد مشرق وسطی سے تیل کی ضرورت نہیں رہی۔ جن کا تیل آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے وہ خود حفاظت کریں۔ دنیا کو امریکہ سے تیل خریدنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ ایران کی نیوی، فضائیہ اور قیادت کو ختم کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف جنگ میں 13 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف بھی کر لیا۔ کہا، 1 ماہ میں امریکی فوج نے بہترین کامیابیاں حاصل کیں۔ آپریشن ایپک فیوری کا مقصد ایران کی نیوکلیئر صلاحیت کو ختم کرنا ہے۔ جنگ سے پہلے مذاکرات ترجیح تھے، لیکن ایران نہیں مان رہا تھا۔ ایرانی میزائل اور ڈرون صلاحیت بھی ختم کرنے کا دعویٰ۔ ٹرمپ کا ایرانی حکومت پر 45,000 مظاہرین کے قتل کا الزام۔ کہا، ایرانی حکومت امریکہ اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگاتی رہی۔ یہ صورتحال 47 سال سے چلی آ رہی تھی۔ سابق امریکی غلطیاں ٹھیک کر رہا ہوں۔ پہلی ٹرم میں جنرل سلیمانی کو مارا، اسے نہ مارا جاتا تو آج ایران بہت مضبوط ہوتا۔ ایران نیوکلیئر ہتھیار بنانے کے بہت قریب تھا۔ امریکی صدر نے کہا، ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا تو اسرائیل اور مشرق وسطی نہ ہوتے۔ پاکستان کی خطے میں قیام امن کے لیے کوششیں جاری۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ خطے کے ممالک کے اہم منصبوں سے رابطے میں ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی نیوز بریفنگ۔ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کو خطرناک قرار دے دیا۔ کہا، جنگ رکوانے کے لیے وزرائے خارجہ کی کوششیں کر رہے ہیں۔ پاکستان خطے میں قیام امن کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ ایرانی قوم اور مسلح افواج اپنے ملک پر حملہ کرنے والوں کے پاؤں کاٹ دیں گے۔ ٹرمپ کے بیان پر ایران کا شدید رد عمل۔ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے کہا، ایران نے کبھی دشمن کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ پاسداران انقلاب نے ٹرمپ کی باتوں کو مضحکہ خیز قرار دیا۔ کہا، ایرانی قوم کے دشمنوں کے لیے آبنائے ہرمز نہیں کھولا جائے گا۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے رکن محسن رضائی نے کہا، آبنائے ہرمز پر ایران کا مکمل کنٹرول قائم رہے گا۔ ایران آبنائے ہرمز بند کر سکتا ہے، مگر پوری دنیا بھی جمع ہو جائے تو اسے کھلوا نہیں سکتی۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 8 خوارج جہنم واصل کر دیے گئے۔ ISPR کے مطابق بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ سیکیورٹی فورسز کا دفاع وطن کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری، مزید دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کارروائیاں تیز کر دی گئیں۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا فورسز کو خراج تحسین۔ ایران نے امریکی صدر ٹرمپ کا جنگ بندی کی درخواست کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں، ایران نے سیز فائر کے لیے کسی کو درخواست نہیں کی۔ ایران نقصانات کے ازالے تک دشمن کو سزا دیتا رہے گا۔ پاسداران انقلاب نے ٹرمپ کا بیان مضحکہ خیز قرار دیا۔ کہا، آبنائے ہرمز پاسداران انقلاب کے کنٹرول میں ہے۔ امریکی اور اسرائیلی فوج کے تہران پر شدید حملے جاری۔ اسرائیلی حملے میں سپریم لیڈر کے مشیر اور سابق وزیر خارجہ کمال خرازی زخمی، اہلیہ شہید ہو گئیں۔ اسرائیلی فوج نے تہران میں کمال خرازی کے گھر پر حملہ کیا۔ سرکاری انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ڈاکٹر خرازی اسپتال منتقل۔ کمال خرازی شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے مشیر بھی رہ چکے۔ نئے سپریم لیڈر کے لیے بھی خدمات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہرمزگان کے جزیرہ ہنگام پر رہائشی علاقوں میں حملے میں 7 افراد زخمی۔ اصفہان میں کاشان کے مسافر اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے اسرائیل پر میزائلوں سے جوابی حملے۔ امریکیوں سے خونی اہداف پر 100 سے میزائل اور ڈرونز داغ دیے۔ تل ابیب اور مشرق وسطی اسرائیل میں کئی عمارتیں تباہ۔ ایران کا امریکی تنصیبات پر بھی حملوں کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق سعودی عرب میں امریکی پائلٹوں اور لڑاکا طیاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ تل ابیب میں میزائل داغ دیے۔ بغداد میں سفارتی مرکز پر 20 ڈرون سے حملہ۔
दोहा के करीब ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइल गिरे। अमरीकी सदर ट्रंप का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, ईरान जंग से मुताल्लिक तबादला ख्याल। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी वली अहद को मुमकिना जंग बंदी मुज़ाकरात के हवाले से आगाह किया। ट्रंप के जंग जारी रखने के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतें मजीद बढ़ गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल 4% इजाफे से $105.55 फी बैरल का हो गया। WTI की कीमत 3% बढ़कर $103.06 फी बैरल तक पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 5,344 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,50,167 की सतह पर पहुंच गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। जापान, जनूबी कोरिया और हांगकांग की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई। मशरिक वस्ता में जंग के असरात बरतानिया तक भी पहुंच गए। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद शदीद किल्लत। लंदन और दीगर शहरों में मुख्तलिफ पेट्रोल स्टेशंस पर गाड़ियों की कतारें लग गई। लंदन में इजाफी कीमत के बावजूद पेट्रोल दस्तयाब नहीं। अक्सर इलाकों में पंप बंद होना शुरू हो गए। पेंटागन ने मशरिक वस्ता में A-10 वॉरथॉग तैयारों की तादाद दुगना कर दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीका ने मजीद 18 A-10 तैयारे मशरिक वस्ता भेज दिए। A-10 तैयारा 1 सेकंड में 70 गोले फायर करने की सलाहियत रखता है। A-10 तैयारों को आमनाए हरमुज के करीब जमीनी कार्रवाइयों में इस्तेमाल किए जाने का इम्कान। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमरीकी अवाम के नाम खुला खत जारी कर दिया। कहा, ईरान की अमरीकी अवाम से कोई दुश्मनी नहीं। ईरानी सदर ने सवाल किया कि क्या वाशिंगटन वाकई अमरीका फर्स्ट को मुकद्दम कर रहा है या महज इजराइल के लिए प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का हिजबुल्लाह की हिमायत जारी रखने का ऐलान। हिजबुल्लाह के सरबराह शेख कसीम के नाम पैगाम में कहा, इसराइल और अमेरिका के खिलाफ जिद्दोजहद करने वाली मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह की हिमायत जारी रखी जाएगी। हिजबुल्लाह के कारकुनों की जानिब से वफादारी के जज्बात की भी तारीफ की। यूरोप का आबनाए हरमुज खुलवाने की कोशिशों में शामिल होने से इनकार। सदर ट्रंप ने यूक्रेन को हथियारों की फराहमी रोकने की धमकी दे दी। अमरीकी सदर ने मुतालबा किया नेटो की बहरी अफवाज आबनाए हरमुज की सिक्योरिटी और बहाली में साथ दे। ट्रंप की धमकी के बाद नेटो सेक्रेटरी जनरल ने सिफारती राब्ते तेज कर दिए। बरतानिया में आबनाए हरमुज खोलने के लिए मुशावरत शुरू। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की बीवी इससे बहुत बुरा सलूक करती है। अभी तक इमैनुअल मैक्रोन का दायां जबड़ा भी ठीक नहीं हुआ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांसीसी सदर पर तंज के तीर बरसा दिए। सदर ट्रंप ने कहा, मैक्रोन ने खलीज में मदद करने से साफ इनकार किया। दो रोज के वक्फे के बाद कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इजलास के लिए 18 निकाती एजेंडा जारी। हवाई कार्गो तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। कौमी फंड बराए सकाफती विरसा तरमीमी बिल की मंजूरी एजेंडे में शामिल। लोक विरसा तरमीमी बिल एजेंडे में शामिल। बारिशों के नए सिलसिले ने बलोचिस्तान में तबाही मचा दी। कला अब्दुल्ला, चागी और गुलिस्तान में सैलाबी रैले रास्ते में आने वाली हर चीज बहा ले गए। चमन के इलाके हबीबजई में मुसाफिर वैन सैलाबी रैले की नजर हो गई। वैन में 15 मुसाफिर सवार थे। अशिया खुरनोश से लदा ट्रक भी सैलाबी रैले में बह गया। कला अब्दुल्ला में बारिश और सैलाबी रैले के बायस कई गाड़ियां फंस गईं। चमन समेत कई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद। महकमा मौसमियात की 4 अप्रैल तक मजीद बारिशों की पेशगोई। कराची में सुरमई बादल बरस पड़े। डिफेंस, क्लिफ्टन, सदर, मलीर और शाराय फैसल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सरजानी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची समेत दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। हैदराबाद और सजावल समेत सिंध के कई इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। पंजाब में 2 साल 3 माह में 5 लाख से ज्यादा अफराद संगजीदगी का शिकार होने का इंकशाफ।
लाहौर हाईकोर्ट में आवारा कुत्तों के काटने से मुताल्लिक केस जनवरी 2024 से मार्च 2026 तक के वाकयात की रिपोर्ट जमा। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में हर साल 2.25 लाख से ज्यादा अफराद को कुत्ते काटते हैं। रवां साल 3 माह में 38,586 केस रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में 26,000, फैसलाबाद में 32, गुजरांवाला में 20, लाहौर में 18,000 और मुल्तान में 16,000 कुत्ता काटने के वाकयात रिपोर्ट। बाघों की हिफाजत लाहौर के माहौल के लिए बहुत जरूरी है। लाहौर हाईकोर्ट का पीएचए के रूल्स के हवाले से गजट नोटिफिकेशन पर अदम इत्मीनान का इजहार। शेरावाला टेक्साली गेट प्रोजेक्ट पर जारी हुक्म इम्तनाई में ताहुक्म सानी तौसीह कर दी। रायबंड नहर पर किनारे पर होने वाले दरख्तों की कटाई, अदालत का इजहार नाराजी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सबसे ज्यादा आलूदा ममालिक में शामिल है। ट्रैफिक इस आलूदगी का एक बड़ा जरिया है। केस की मजीद समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। पंजाब में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को जुमा के रोज ऑनलाइन क्लासेस की इजाजत मिल गई। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा, तलबा के कम से कम तालीमी नुकसान के लिए ऑनलाइन क्लासेस की इजाजत दी। हम इतने बेवकूफ हैं जो पैदाइश पर शहरियत दे देते हैं। अमरीकी सदर शहरियत कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अमरीकी तारीख में ट्रंप सुप्रीम कोर्ट की समाअत में जाने वाले पहले सदर बन गए। इंडोनेशिया के समुद्री इलाके मोलोका में जल्जले के शदीद झटके। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 7.8 थी। हुक्काम ने सुनामी वार्निंग जारी कर दी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर थी। जल्जले से सुनामी का खतरा। फिलिपाइन और मलेशिया के साहिलों पर भी सुनामी की लहरों का इम्कान। ऑटिज्म से आगाही का आलमी दिन। वजीर आजम का वालिदैन, असातिज़ा और खिदमत गुजारों को खिराज तहसीन। 1 साल में जदीद ऑटिज्म मरकज की तकमील का हदफ। HBL PSL में आज 2 मैच खेले जाएंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड का क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मैच 2:30 बजे शुरू होगा। कराची किंग्स और रावलपिंडीज शाम 7 बजे आमने सामने होंगे। हैदराबाद किंग्समैन को मुसलसल तीसरी शिकस्त। PSL 11 में मुल्तान सुल्तान्स ने हैदराबाद किंग्समैन को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। मुल्तान सुल्तान्स ने 226 रन का पहाड़ जैसा हदफ 8 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया। साहबजादा फरहान की शानदार सेंचुरी। 106 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। हैदराबाद किंग्समैन ने पहले खेलते हुए 225 रन बनाए थे। साहबजादा फरहान की PSL में पहली सेंचुरी। 57 गेंदों पर 106 रन की इनिंग्स खेली। 8 छक्के और 7 चौके लगाए। साहबजादा फरहान के T20 में भी 5000 रन मुकम्मल हो गए। साइम अयूब के PSL में 1000 रन मुकम्मल। 50 साल बाद अमरीकी मिशन चांद पर रवाना हो गया। मिशन 50 साल बाद दोबारा इंसानों को चांद पर ले जाएगा। 50 साल बाद मून मिशन को आर्टिमस 2 का नाम दिया गया। 4 खलाबाजों पर मुश्तमिल टीम 10 रोजा मिशन में तकरीबन 6,85,000 मील का सफर करके चांद के गिर्द चक्कर लगाएगा। मिशन चांद पर लैंडिंग नहीं करेगा। मिशन को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से रवाना किया गया। ट्रंप की अमेरिकी कौम को नासा मिशन पर मुबारकबाद। कहा, बहादुर खलाबाज इस मकाम पर जा रहे हैं जहां इंसान और मारूफ फोक गुलकार शौकत अली को दुनिया से रुखसत हुए 5 बरस बीत गए। 5 दहाइयों तक यादगार गीत गाए। 1990 में हुकूमत पाकिस्तान ने तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा।